Okay, so hi everyone. Am I audible? Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, okay. Okay, so MCSA Windows Server Administrator, okay, course. So it is not only MCSA, we are going to learn the Windows Server Administrator course as I advance, like MCSC means expert level training, okay. And I think from today we are going to cover the advanced part of like MCSA Windows Server Admin means we are going to start the server lab, okay? And one more thing, I uploaded module 1 means the fundamental of networking on portal, okay, from uh, 0 to advanced. So you can revise your networking concept from the portal, okay? And one more thing, from today we are going to start the lab and you can perform the lab on uh, own machine like laptop, desktop, okay, and it is for free for lifetime. No need to pay any amount for lab access and all from any website or for any particular website. No need to even access the lab from the Azure or AWS cloud, because after all you are going to manage this server, okay? Getting my point? Hello. Yes, sir. Okay, so you can set up your lab on your machine. Even then, if you have only 8 GB of RAM, there is no problem. You can set up. Okay, and from today we are going to discuss the advanced part of server. Okay, म्यूट कर लीजिए सभी लोग. And I think okay. Okay, and someone text in the message box that he is not able to listen me. Okay, I think now fine. Is the screen visible? Yes, sir. Okay. सो निखिल, आपने बेसिक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट देखा? कंप्लीट नहीं देखा है। आधा देखा है, बहुत शुरू का। ओके। वो भी यूट्यूब वाली। नहीं, वीडियोस से भी देखिए, जो वीडियोस वेबसाइट से अलाउ किया गया है। नहीं, यूट्यूब से अगर आपने देखो, नेटवर्किंग जस्ट फंडामेंटल है, आप यूट्यूब से कवर कर लीजिए या फिर जो वेबसाइट्स पे दिया हुआ है वहाँ से कवर कर लीजिए। आज 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर हर हाल में नेटवर्किंग पढ़ लेना सभी लोग, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूल 1 नेटवर्किंग, फिर मॉड्यूल 2 हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देखा था, जो कि लास्ट डे में सर्वर का पहला लैब था, हाउ टू सेटअप सर्वर लैब, ओके।
सो आई थिंक सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर लास्ट क्लास सर्वर लैब सेटअप का किसी का मिस हुआ था तो वेबसाइट पर अपलोड है, देखेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आज मैं फाइनल लैब गाइड देता हूँ और फिर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग कोर सर्वर। ओके, सो हाउ टू सेटअप लैब। So first of all, you can download server operating system. Any version of server means you can use server 2016, 2019, 2022, 2025. ओके, जो भी आप लर्न करना चाहते हो उसको डाउनलोड कर लोगे। सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड सर्वर 2022 ISO डाउनलोड। Either you can download Server 2025, which is the latest version of Windows Server operating system. Okay, and every particular latest version comes with different types of in instability बोल सकते हैं कि multiples of roles and features are in testing mode. So we can use any stable version from the previous version of server operating system. बिकॉज प्रीवियस वर्जन्स हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, सो देर इज़ नो डिफरेंसेस while doing any lab on Windows Server 2016, 19, 2022 or 2025. Okay, you can download any version and install on your machine. Okay, it is very easy to set up your server lab on machine. Okay, first of all you can just download any version. For example, I want to download Windows Server 2025. So you can just type Server 2025 ISO download and just click on first link, which is given by Microsoft. Click on this particular link, and here is the Windows Server ISO file. Okay, this one. So you can just click on this particular option. Okay, and you will get a form. Okay, and this is the simple form where you can put your name, last name, email address, and other details. This is, I think, just for advertisement, and you can add all detail and click on download button to download the server. There is nothing more. Okay. After downloading, you can use VirtualBox, which is totally free for lab. Okay. You can just download Oracle VirtualBox and see this is the option to download this, and you can use any particular package. Like if you have Windows machine, so you can download for Windows, download for Mac, download for Linux. Okay, and simple you can install this VirtualBox on your computer system. You can just double click on application to install this application on your computer. Okay, so see this is the VirtualBox, and simple you can click on new button. Okay, new, and you can type all details. Okay, like if you want to install Windows Server 2022, 2025, you can type the name like Server 2025। जो भी आपको डिटेल देना है आप दे देंगे। कहाँ पर रखना चाहते हो आप मशीन को, जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे होता है ना कि हमारे पास C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम काम करते हैं वो C ड्राइव में होता है, यूज़र डायरेक्टरी में। बट अगर मैं इसको इसका कोई और लोकेशन सेट करना चाहता हूँ, सो आई कैन, एंड आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट द ISO which you downloaded early. Okay, and you can type edition, like it is Microsoft and it is Windows Server operating system, so you can type Windows Server version. Okay, and you can follow the other instructions and just click on finish. Okay, and then you can just boot your machine. So this is free. Okay, ये बिल्कुल फ्री है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा रैम और कुछ आपको चाहिए नहीं इसके लिए।
And second one, you can download VMware Workstation 25H2 H2. Okay. Why I like share the update about Workstation 25H2? Let me show. Is VMware Workstation 25H2 free for student and teacher? So you can see, yes, VMware Workstation Pro 25H2 is free for student and teachers. Okay. In November 2024, Broadcom, which acquire VMware, okay, but from last 2 or 3 months, it is free for personal use. Okay. So the latest version, if you want to use for free, you can download 25H2 only. Instead of this version, all other version or all other things are paid. Okay. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको ब्रॉडकॉम की साइट से ही आपको डाउनलोड करना है. ओके. सो सिंपल, यू कैन डाउनलोड VMware Workstation 25H2 download. Okay. And you can register your detail on Broadcom website, like email ID, your name, mobile number, and you can download this product. Okay. Either you can download from third party website. Okay. Like you can just download from other website, like this is the another website, you can directly download this particular application. Okay. So कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं है. आई थिंक दीज आर दी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये सर्वर में आपको पढ़ना पड़े तो फिर थोड़ा सा सोचनीय बात हो जाएगी हम लोगों के लिए कि भाई सर्वर में हमें डाउनलोडिंग सीखना पड़ रहा है, ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड, राइट. बट नो वरी, विदाउट नॉलेज एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, राइट. सो आ जाते हैं पॉइंट पर. तो मैंने डाउनलोड कर रखा है सर और एक क्वेश्चन था 20. मेरा। हाँ हाँ. हम ये एक्स्ट्रा वर्चुअल बॉक्स क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? और किसमें हम रन करेंगे, रन कहाँ पर करेंगे उस मशीन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को. अगर आप वर्चुअल बॉक्स नहीं रन यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं. अपनी मशीन एक जिसमें हमने लैब सेटिंग सेट की हुई है वहाँ पर रन नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल उस पर कर सकते हैं, बट सबके पास नहीं मल्टीपल मशीनें होंगी ना, ओके, दैट्स द थिंग। है कि नहीं. और गॉट इट सर। और दूसरा सर, इंडस्ट्री अब शिफ्ट हो रही है फ्रॉम VMware टू हाइपर वी, तो हम लोग फिर मतलब डोंट वरी, चॉइस है ये हमारे पास? द नेक्स्ट चैप्टर इज हाइपर वी. ओके. ओके सर, थैंक यू। एंड आफ्टर द MCS से जिन लोगों ने कॉम्बो कोर्स लिया हुआ है VMware एडमिनिस्ट्रेटर का, मीन्स पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें समझाया जाएगा. ओके. मीन्स यू विल लर्न दैट हाउ एक्चुअली cloud type of technology or infrastructure work behind the every cloud. Okay. Means how you can create or manage HA, DRS, other different kind of part related virtualization. तो वो भी काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग. आई थिंक अरविंद आपका एडमिशन हो चुका है कॉम्बो वाले में. यस सर। हाँ. मुझे तो तो ज़्यादा बट आइडिया भी नहीं है मार्केट का, बट क्योंकि हाँ जॉब्स हाँ वगैरह अप्लाई करते रहता हूँ तो हम मेंशन करते हैं कि ओके यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ VMware बट इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स द हाइपर वी। मैंने कहा पूछ लेता हूँ सर डेफिनेटली. से। So Hyper-V is Microsoft product, okay? That's why Hyper-V is essential for every particular Windows Server admin, okay? क्योंकि आफ्टर ऑल आप माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट को काम करने वाले, यूज़ करने वाले हो कंपनी के अंदर. तो Hyper-V आपको पढ़ाया जाएगा. Hyper-V आपका चैप्टर में ही है. अगले चैप्टर में हम लोग Hyper-V ही पढ़ेंगे, ओके? परफेक्ट सर। तो ये एक स्मार्ट प्लानिंग है कि अगर आप इंटरव्यू अप्लाई कर रहे हो और आपसे इंटरव्यू में बहुत सारे नहीं, हर जॉब में लगभग VMware की रिक्वायरमेंट या वर्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट मांगी जाती होगी, है ना.
अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब या कोई भी अप्लाई कर रहा है तो, क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट है हमारे सर्वर एडमिन का, इसीलिए मैंने कॉम्बो बनाया हुआ है कि जिनको ऐड करना है वो ऐड कर लें। है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आपको पे करना है कि 30-40 हज़ार का VMware का प्रोडक्ट आप वो करिए, बट आपको बहुत मिनिमम अमाउंट में चीज़ें शेयर करी गई थी। ओके, कम टू द पॉइंट, लाइक हाउ टू इंस्टॉल, लेट मी सेट अप द लैब। ओके, तो निखिल का आई थिंक लास्ट क्लास एसेंशियल पार्ट था, तो यहाँ से कवर हो जाएगा, आप ध्यान से समझें। ओके निखिल, यस सर। so simple, you can open any particular virtual box VMware Hyper-V and just click on create new virtual machine and then select custom. Okay, next, and then server version, sorry, I will install the operating system later and then server version. Okay, I'm going to use Microsoft. यू कैन यूज़ एनी वर्जन। ओके, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कि आप जो मैं 2022 कर रहा हूँ तो आप भी यही करो, आपको जो मन करे वो इंस्टॉल करना, और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी लगेगा कि ये तो सर्वर 2022 में इस तरीके से हो रहा है DSCP का इंस्टॉलेशन और 2025 में दूसरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ कहीं ऐसा लगे मेरे से पूछ लेना। ज़ीरो स्टेप डिफरेंट मिलेगा आपको। ओके, सो दिस इज़ लाइक SRV 22, एंड मैं इसका एक लोकेशन ले लेता हूँ, मैं C ड्राइव में नहीं इंस्टॉल करना चाहता, तो मैं कोई एक लोकेशन ले लेता हूँ। सिंपल लेने के बाद UEFI, और सर्वर को कम से कम आप 2 प्रोसेसर दे दो मिनिमम, और ज़्यादा दे सकते हैं तो दे दीजिए। कम से कम 2 GB रैम आपको देना है। ओके, अगर आपके सिस्टम पर 8 GB रैम है तो 2 GB दे दो, 4 GB दे दो, क्या दिक्कत है। बट 16 GB है तो 4 GB दे दो। मेरे पर भी 24 GB है तो मैं 4 GB देता हूँ, बहुत इनफ है। 2 GB में भी हमारा सारा काम चलेगा। ओके, क्योंकि अगर हमारी लैब हमारे पास है तो हम लाइफ टाइम उसमें प्रैक्टिसेस और अपनी स्किल्स पर काम करेंगे। है ना, क्लाउड या कहीं की भी लैब अगर है तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, एक्सेस कुछ दिन बाद हट जाए या वो सारी चीज़ें, या क्रेडिट देना पड़े, कुछ भी ऐसे तो भी दिक्कतें हैं। इंटरनेट नहीं है फिर भी दिक्कत। है ना, तो यहाँ से जस्ट मैंने नेक्स्ट किया, NVMe बेसिक सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप फॉरवर्ड करेंगे, और कम से कम आप एक स्पेसिफिक 30+ GB का स्पेस देंगे, जो भी दे सकते हैं, और सिंगल फाइल में आप इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। डन, सिंपल यही है हमारा। अभी मैंने यहाँ से एडिट वर्चुअल मशीन पर आना है, एंड CD/DVD में ISO फाइल जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको ऐड कर लेना है। सिंपल, पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, press any key to boot from CD/DVD, and this is a simple installation process. Okay. You can click on next, install now. इसके बाद मतलब इस ट्रेनिंग के बाद आप एज्योर का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि 400, 800 तो पूरा दे सकते हैं, 400, और ये मतलब जो भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अभी मैं आपको पेज विजिट करा दूंगा, सीरीज ऑफ एग्ज़ाम्स टच करेंगे हम लोग। बाकी चीज़ें आपको इंस्टॉलेशन आती है, इंस्टॉलेशन क्या कराना है, क्या बनाना है, क्या करना है, आप अपना पार्टीशन सब बना के यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, आप अपने सर्वर को यूज़ कर पाएंगे। सिंपल, ये हमारा इंस्टॉलेशन था। एंड लेट मी क्रिएट वन मोर लैब, लाइक क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन।
नेक्स्ट, आपको भी ये मल्टीपल बनानी पड़ेंगी, तो बना लेना, एक बना के ऑफ कर देना, दूसरा बनाना। तो मैं 25H2, बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैं सर्वर 2022 ही ले लेता हूँ। एंड S22 कोर, कोर इंस्टॉलेशन हम लोग कर लेते हैं। कोर मतलब ओनली कमांड लाइन। ओके, ऐसा सर्वर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो कि ओनली कोर को सपोर्ट करेगा, मीन्स ओनली कमांड लाइन से चलेगा। इसके लिए 2 GB रैम क्या 1 GB भी बहुत है। कम से कम 30 GB रैम दे देते हैं, सॉरी स्टोरेज। और एडिट वर्चुअल मशीन, CD DVD, ISO file, and simple you can select ISO, you can select any version, multiples of version you can download free from Microsoft website. Okay, it's free for 6 month, और 6 month बाद हम फिर से इंस्टॉल कर देंगे। सर कोर का आईएसओ सेम होगा या डिफरेंट होगा? हाँ सेम सेम है, उसी से इंस्टॉल होगा। ओके। मतलब हम सेम आईएसओ दो डिफरेंट मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं? हाँ, ठीक है सर। उसी आईएसओ को मैंने सेलेक्ट किया अभी, इसके लिए भी उसी आईएसओ की इधर इंस्टॉलेशन चल रहा है, उसी से मैंने इधर बना लिया। अब अगर रियल मशीन होती, फिजिकल मशीन पर करना है, तो पेन ड्राइव में बूटेबल बना लेंगे रूफस सॉफ्टवेयर से, फिर बूट कर लेंगे पेन ड्राइव से, है ना। एक ही आईएसओ से दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। थैंक यू फॉर एनलाइटिंग सर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट कहीं मैं कुछ सीख रहा था कहीं से, तो उन्होंने बताया नहीं, ना आई हैड टू बाय 16 GB रैम, कॉस्टेड मी लॉट ऑफ मनी। अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में सर, आई वाज रियली स्ट्रगलिंग एंड देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू बाय। और अभी क्या है, ओके, रैम नो के प्राइस प्रॉब्लम। बहुत ऊपर चले गए हैं। बट अभी जो ये एडिशन है ना, इसमें देखो दोनों चीज़ हमारा इनबिल्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। हियर यू कैन सी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, मैंने इधर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे ओके। GUI एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। और जस्ट इसके ऊपर देखो, GUI मतलब डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जहाँ इंक्लूड नहीं है, वो वाला हमारा क्या है, कोर है। तो अलग से हमें वो नहीं करना है, इस इमेज में दोनों अवेलेबल है। एंड जस्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कोर वाला। स्टैंडर्ड नहीं इंस्टॉल करना है किसी को, क्योंकि वहाँ लिमिटेड फीचर मिलेंगे, लिमिटेड यूज़र बना सकते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड में तो फिर भी हम 2 Hyper-V चला सकते हैं और ये सारी चीज़ें। एसेंशियल वगैरह में 25 यूज़र या 50 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप इंडस्ट्री में हो, वर्किंग हो, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर लाइक server admin. Okay, we need to know the some essential part of license. So for essential version, you can use maximum 25 user. Okay, अगर आपके कंपनी में लगता है कि सिर्फ 25 यूज़र हैं, तो आप एसेंशियल वर्जन लेकर जा सकते हो। उससे एक भी यूज़र बड़ा हुआ तो मतलब आपको फिर स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप 50 डिवाइसेस रजिस्टर कर सकते हो अपने एसेंशियल वर्जन के साथ। बट आप इसमें वर्चुअलाइजेशन और कुछ नहीं कर सकते, you cannot run Hyper-V and all, right. And a standard provide multiples of user, means like no limit, you can say like no limit of users in standard, but we can run only 2 Hyper-V. And there are other different like limited कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं, तो ये भी हमारा मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। बट फॉर एग्जांपल while वर्किंग इन एंटरप्राइज, ओके, so always select data center, right. आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करें, डेटा सेंटर को सेलेक्ट करें। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको अनलिमिटेड
फीचर मिलते हैं। तो मैं डेटा सेंटर का इवोल्यूशन मींस डेस्कटॉप वाला नहीं सेलेक्ट करूंगा, तो ये क्या होगा, कोर सर्वर का इंस्टॉलेशन होगा। एंड सेलेक्ट दिस ऑप्शन, नेक्स्ट, सिंपल, सेम प्रोसेस, डन। So this is the module 2 part, means server lab setup. So we have done that, how to set up core and GUI version. Okay. And this is GUI version. So you can apply the password after installation, and simple you can add you can install like software for your computer hardware in real environment. But आजकल जितनी भी मशीनें हैं वो ऑलरेडी सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रही हैं। तो ये हमारा सिंपल इंस्टॉलेशन हो गया। अभी इसको डाउन कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑफ कर दिया, उसको बाद में समझेंगे उसमें सेटअप कैसे करना है। एंड दिस इज़ माय कोर सर्वर, ओके। सो let me explain what is core server and what is the real time use in industry, okay। what is core server, किसी को आइडिया है क्या, क्या होता है कोर सर्वर? ओके, अभी मैंने ब्रीफ किया आप लोगों को अबाउट कोर सर्वर। लाइक कोर सर्वर इज अ सर्वर which support, or it is a minimal installation, okay, it is a minimal installation. The meaning of minimal installation means limited, like limited feature, okay, no GUI. Minimal installation means no GUI, okay। एंड यही मिनिमल इंस्टॉलेशन आपका लिनक्स सर्वर में भी होता है। वाइल लर्निंग और मैनेजिंग लिनक्स सर्वर देयर इज मिनिमल इंस्टॉलेशन एंड फुल सर्वर इंस्टॉलेशन। मिनिमल मीन्स ओनली टर्मिनल बेस्ड सर्वर इन लिनक्स इन्वायरमेंट, एंड फुल मीन्स टर्मिनल प्लस GUI। और विंडोज़ में वही देखो, मिनिमल इंस्टॉलेशन और कोर इंस्टॉलेशन और कोर सर्वर बोला जाता है, ओके। सो कोर सर्वर मीन्स you can manage your core server only command line interface, okay। there is no graphical user interface to manage the server, okay। so if you want to manage or deploy a lightweight server in your organization, so you can use core server। it required 512 MB RAM, okay। 512 MB रैम पर ये चल जाएगा। अब सोचो, 512 MB रैम और 5 to 10 GB स्पेस रहेगा तो भी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर सोचो कि हमारी कंपनी में कोई एक ऐसा लाइट वेट सर्वर रन करना है, या बहुत ऐसा कोई सर्वर चाहिए जिसमें लिमिटेड एक दो सर्विसेज, मान लिया कि मुझे फाइल सर्वर बनाना है या कुछ ऐसा फीचर रन करना है, सो आई वी कैन डिप्लॉय कोर सर्वर, और कंपनी कैन डिप्लॉय कोर सर्वर, ओके। and also it is designed to reduce the server attack surface. Why it is used to reduce the server attack surface? क्यों, मतलब कि ये हमारा सर्वर अटैक सरफेस को रिड्यूस करता है? बिकॉज इट इज़ अ टर्मिनल सर्वर और कोर सर्वर, मीन्स इट इज आर पर्टिकुलर सर्वर यूज्ड बाय ओनली कमांड लाइन इंटरफेस आर पावर शेल। तो it is very tough to deploy the any kind of malware and other malicious activity into
सर्वर, राइट। तो कंपनियां इसको क्यों डिप्लॉय कर सकते हैं, एक और रीज़न है कि अगर हमें बहुत छोटा सा एक ऑपरेशन करना है अपने सर्वर में, यू कैन रन मल्टीपल्स ऑफ सर्विसेज इन कोर सर्वर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन रन मल्टीपल्स ऑफ सर्वर, मल्टीपल्स ऑफ फीचर एज पर सर्वर। ओके, जैसे कि जो हमारे GUI में है वो हम यहाँ पर भी मल्टीपल रन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ऐसा नहीं है कि कोर सर्वर है तो इसमें ये सपोर्ट करेगा वो नहीं करेगा, यस। कुछ रीज़न या कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो ओनली GUI पर चलते हैं, बट लगभग सारे मोस्ट ऑफ रोल्स यू कैन मैनेज थ्रू कोर सर्वर। बट अगर हमें सारे रोल पर काम करना है तो हम इतना गलत डिसीजन क्यों लेंगे, हम कोर सर्वर क्यों यूज़ करेंगे, फिर हम GUI पर जाएंगे ना जहाँ पर फुल फीचर्ड सर्वर मुझे मिलेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो। अगर हमारी ज़रूरत है कि हमें सिर्फ कॉल पे बात करनी है तो हम एक फ़ीचर फ़ोन ले लेंगे बेसिक वाला, 1500 रुपये में। और अगर हमारी ज़रूरत है थोड़ा सा स्टेटस सिंबल के लिए, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हाई क्वालिटी कैमरा के लिए, तो हम फिर 1.5 लाख का फ़ोन लेंगे। 1500 से 3 4 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। तो नीड, हम अब ऐसा नहीं है कि फीचर फ़ोन में हम बोलें कंपनी को कि भाई इसके अंदर 3G 4G चला के दो और ये सारी चीज़ें, राइट। क्योंकि वो उसके लिए नहीं है, हालांकि वो अपग्रेडेशन करने के लिए हमें फिर अपने सर्वर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो देर इज मिनिमम फीचर इन विंडोज कोर सर्वर बाय डिफॉल्ट, but as a admin we can deploy different kind of feature or features in our role in server core operating system. Okay, and it is command line interface operating system, so there is less chance to deploy the malicious activity. लिनक्स क्यों सिक्योर माना जाता है? क्योंकि वो कमांड लाइन से चलता है। अभी मैं बोलूँ आप में से कितने लोग विंडोज़ 11 चला लेते हो या विंडोज़ 10? लगभग सभी लोग बोलोगे यस। मैंने पूछा बिना ट्रेनिंग के चला पा रहे हो या ट्रेनिंग लिया था चलाने के लिए? नहीं सर, बिना ट्रेनिंग के मैं चला लेता हूँ, कहीं सीखा नहीं था, चलाने आ गया ऑटोमेटिक। बट मैं बोलूँ कि लिनक्स भी तो वैसे ही है, अबंतु डेस्कटॉप वर्जन। आप में से कितने लोग अबंतु डेस्कटॉप वर्जन चला लेते हैं? कोई लगभग हाथ नहीं उठाएगा। मैं बोलूँ उसके अंदर सिंपल एक कमांड से फाइल एग्जीक्यूट करके उसको डेस्कटॉप, मतलब एक फ़ाइल बनानी है, फाइल का नेम भी असाइन करना है थ्रू टर्मिनल, एंड उसको डेस्कटॉप पर सेंड करना है और सेव करना है। कोई लगभग नहीं कर पाएगा जिन्होंने काम नहीं किया है, उसके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हमारा टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स कोर सर्वर है, सो यस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़ फॉर बिगनर। ओके, क्योंकि हमें IP भी देनी है तो कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि भाई कौन सी कमांड से IP पड़ेगी, है ना, ये सारी चीज़ें। सो कोर सर्वर हैज़ नो GUI। ओके, so you can manage entire core server through command line interface. Either you can use PowerShell or you can use command line interface. Okay, this is come with basic feature, but PowerShell provide advanced level of support to manage your core server or any particular Windows server operating system or terminal server or terminal services. Okay, provide advanced level feature means you can deploy every role and feature with the help of PowerShell. Command line just for basic use, like how to check IP address, how to reply, okay, how to assign user, how to change password. Means basic terminology you can manage with the help of command line interface. But PowerShell provide advanced feature, means if you want to deploy Active Directory in your Windows server, core server, you can with PowerShell. Okay. So core server is used for remote server administrator tool, means RSAT. Means we can deploy core server to access or to manage the other server with the help of remote execution. Means for example,
I have a data center in my company, and the data center, this is first data center, which is DATA1. DATA1. This is data center 1 server. It is full featured server with GUI. I want to install X role in this server. So I can access this server with the help of our core server, which I can deploy on my laptop as an admin, or I can like deploy core server on any particular machine, and I can provide, I can access remote, uh, or like I can access this server as a remote service or using remote service, like कोई भी ऐसी सर्विस ले लेंगे SSH और टेलनेट और RDP और बहुत सारे तरीके की सर्विसेज होती हैं जो कि हम डिप्लॉय करेंगे, और फिर हम इसी कोर सर्वर से इसमें वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. इवन देन आई कैन डिप्लॉय दी X रोल एंड फीचर इन माई कोर सर्वर ऑल्सो. बट अगर हम टर्मिनल से कुछ मैनेज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत हमेशा सर्वर पर जाना होगा और ये सारी चीज़ें. थ्रू रिमोट एग्जीक्यूशन वी कैन मैनेज एवरीथिंग for core server or for GUI server using core server. Okay, so no desktop cell, start menu or graphical application like file explorer around, there is nothing. ये क्या होगा, बिल्कुल एक कमांड लाइन जैसा खुल के आ जाएगा, एक सिंपल सामने CMD मिलेगा आपको. लेट मी शो, दिस इज द कोर सर्वर. ओके, सी दिस इज द कोर सर्वर. So you can add password, confirm your password, and see this is the core server. ओके, तो आपको समझ में आया क्या है कोर सर्वर? ये हमारा कोर सर्वर है. ओके, सो दिस इज द कोर सर्वर एंड आई कैन मैनेज दीज ऑल सेटिंग by default in core server. Like if you want to change domain to work group or work group to domain, so you can use number 1, you can type 1 and press enter. You can change computer name, add local administrator for remote management, update setting, install update. You can enable disable remote desktop and many other settings. Okay, so simple, this is the core server. Okay, and reduce footprint. Footprint means, मान लिया कि आप GUI मशीन एक एक्सेस करते हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आप विजिट करते हो टेम्परेरी फाइल, रीसेंट फाइल, बहुत सारे ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होते हैं. ओके, बट कोर सर्वर और टर्मिनल सर्वर रिड्यूस फुटप्रिंट लाइक स्मॉलर डिस्क यूसेज, typically 50 to 70% smaller than a full GUI server. Full GUI server required minimum 32 GB of free space in your storage, and this server core server required only 5 to 10 GB. And lower memory and CPU consumption and fewer update and reboots since fewer components are installed. Because in core server there is less feature, means you can manage limited feature in compare of GUI server. That's why it reduce footprint, and also it reduce footprint like बहुत सारा काम जो आप करते हो ना, उसका भी बहुत सारा मेमोरी यूटिलाइजेशन बफर एंड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं. बट कोर सर्वर में ऐसा कुछ नहीं है, तो उस वजह से हमारा मेमोरी कंजप्शन और सारी चीज़ें कम होती हैं, स्टोरेज यूटिलाइजेशन और सारा कुछ. इट इन्हांस द सिक्योरिटी. ओके, because this is the terminal server and most of cases the user have no idea that how to use terminal server. But while working on cloud technology, okay, or in automation, you will learn that how to manage server using PowerShell. So you can use core server and the feature of PowerShell in core server to manage your cloud server or automation level services. Okay, मान लिया कि आपने एक क्लाउड सर्वर डिप्लॉय किया, एक सर्वर डिप्लॉय किया, विंडो सर्वर 2025 ऑन क्लाउड सर्वर, लाइक AWS पर डिप्लॉय करो, एज्योर पर डिप्लॉय करो, कहीं पर भी करो, तो आप अपने कोर सर्वर के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो. ओके,
एंड ऑल्सो इट इन्हांस द सिक्योरिटी बिकॉज देर आर लिमिटेड सर्विसेज। अब मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच हैकर कब कर पाता है, एक सिक्योरिटी ब्रीच कब कर पाता है एक हैकर, या एक घर में चोरी क्यों हो जाती है, जब घर के खिड़कियां दरवाजे या अंदर आने के रास्ते वल्नरेबल हो, है ना, सिक्योरिटी कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। मतलब एक घर मैंने बनाया ये, और मेन गेट एक जगह होने की बजाय मैंने चारों तरफ चार चार गेट लगवा दिया, मेन गेट की एंट्री मल्टीपल खिड़कियां लगवाया, और वो वल्नरेबल मीन्स वीक है, आसानी से दो स्क्रू कोई भी खोल के अंदर घुस जाएगा। तो जो हमारा GUI सर्वर होता है ना, वो समझ लो इसी तरीके से होता है, उसमें इतने सर्विसेज रन हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट कि उसमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई द कोर GUI सर्वर आर फुल फीचर्ड सर्वर इज मोर वल्नरेबल इन कंपेयर ऑफ जी कोर सर्वर, ओके। So if you want to deploy a lightweight server with minimum feature in your company or in your environment, so you can use core server to reduce the attack surface, to reduce the footprint and hardware utilization. But you need to know that how to manage your core server or your server with the help of PowerShell or command line interface. Okay. Core server support every particular role and feature. By default, core server come with limited feature. Means there is limited feature like this. You can manage these all things, okay? तो ये क्या है भाई, एक अपडेट की सेटिंग है, वर्कग्रुप ज्वाइन और डोमेन ज्वाइन का ऑप्शन है, बाकी IP चेंज करना है, रिमोट डेस्कटॉप है, और क्या है, कुछ नहीं है ना, लिमिटेड फीचर है। बट इन दी कोर सर्वर वी कैन डिप्लॉय मल्टीपल्स ऑफ feature, like we can deploy Active Directory, DNS, DSCP, Hyper-V. Most of cases company use core server to deploy the Hyper-V. बस यही रीजन, एंड फाइल सर्वर और सम वेब सर्विसेज, ये रीजन है। इंडस्ट्री की यही रिक्वायरमेंट, कंपनी के अंदर जाओगे तो एक्टिव डायरेक्टरी रन करने के लिए कोर सर्वर नहीं इस्तेमाल करोगे या मे बी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे, का मतलब नहीं करेंगे, मतलब एक कंपनी का सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को एक्टिव डायरेक्टरी और इसकी नीड है, तो फिर वो क्यों नहीं GUI पर कन्वर्ट हो जाएगी, या फुल फीचर्ड सर्वर लेगा, लाइसेंस परचेज करेगा। बट मोस्ट ऑफ केसेस में जो कोर सर्वर होता है ना, Hyper-V फाइल स्टोरेज या वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा चांसेस या देखने को मिलेगा कि हाँ भाई ये करना है, कोर सर्वर ले लो, ओके। And you can run multiple other services on core server without any interruption. But to manage the core server, you need to learn PowerShell program. PowerShell भी फिर पढ़ना पड़ेगा। मैं PowerShell का प्रोग्राम अपने YouTube पर अपलोड करूँगा आने वाले आफ्टर 15 to 20 days, जिसमें आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं टू मैनेज कोर सर्वर for Active Directory, for DNS, for DSCP, for file server, for remote desktop, for other web deployment, or for other different kind of storage level services and other things, okay। सारी चीज़ों को लेकर हम मैनेज करेंगे, उधर पढ़ा देंगे। So some roles requiring GUI tool like Windows Server Update Services with GUI management are not available। अब भाई कोर सर्वर है क्योंकि उसके अंदर GUI फीचर नहीं है ना, या डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का फीचर नहीं है। सो देर इज अ क्वेश्चन इन माई माइंड दैट कैन वी कन्वर्ट कोर सर्वर into GUI server or full feature server? So the answer is yes, you can. And you can convert your full feature server into core server in case of any heavy or in case of any requirement, okay। सो इट इज़ पॉसिबल कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोर को GUI और अदर इन सारी चीज़ों में। नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी साथ में जब आप ट्रेनिंग में पढ़ रहे हो ना लाइव क्लासेस में, तो अपना हैंड नोट कुछ बनाते रहेंगे,
क्योंकि सब कुछ लिख के भेज देना पॉसिबल नहीं है। हमने जस्ट यहाँ पॉइंट ऐड किया हुआ है जिसको मैं समझा रहा हूँ, और एक पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, राइट। तो यू कैन नोट डाउन वाइल लर्निंग इन लाइव सेशन, अपना सेल्फ नोट भी बनाएंगे। पढ़ने का तरीका मैं क्या बताऊँ, आप सभी लोग सर्वर पढ़ रहे हो, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, फिर क्या बताना कि कैसे करना है ना। इतना तो स्मार्टली आप मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। द कॉमन यूज ऑफ कोर सर्वर, so data center server running specific rules like DNS, DSCP, Hyper-V, okay, Active Directory, or other different type of services, okay. And yes, we can use core server as a container. Why we can use core server as a container? Because we can deploy Hyper-V in core server. Okay, we can deploy Hyper-V in core server. So the meaning of Hyper-V means what? We can run multiples virtual machine. Okay, so it act as a container. भाई जब आप क्लाउड पर जाते हो, बहुत सारे लोग क्लाउड को लेकर बहुत डर रहे होते हैं। जब जॉब के लिए जाते हैं कहीं पर भी, आप सर्वर मैनेज करना सीख गए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका सर्वर चाहे किसी भी जगह रखा हो, आप उस पर काम कर लोगे। डेफिनेटली क्लाउड को समझने के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए कि क्लाउड मैनेज कैसे करना है, क्लाउड में इंटरफेसेस कैसे होते हैं, क्लाउड में सर्वर की मशीन प्रिपेयर कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। तो उसका भी जो लोगों ने वीएम वेयर का कोर्स लिया हुआ है ना, उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ओके, बाकी 10% अगर आप एक्स्ट्रा सेशन वीडियो के थ्रू देख लोगे, मैं रिकमेंड कर दूंगा, तो आप क्लाउड पर अपने इंस्टांसेस रन करके उसको एक्सेस कर सकते हो, बस कुछ नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि एज्योर के मल्टीपल एग्ज़ाम इस ट्रेनिंग के बाद आप दे सकते हो। 800 प्लस 400 की सीरीज़ में समथिंग लाइक दैट, अगर 300 का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है तो फिर वो मैं अभी चेक करके, या कुछ ऐसा वो रहेगा तो आपको गाइड करूँगा। तो इट एक्ट एज अ कंटेनर मीन्स यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल्स ऑफ images or servers on core server using Hyper-V feature. High security environment where minimum attack surface is critical or available, like there is less feature, less services, okay, and hacker attacker needs more vulnerability to compromise any machine, okay, मीन्स इवन देन अगर वो एक भी उसके पास वल्नरेबल ऐसा पॉइंट है जो कि सरफेस अटैक को बढ़ा देता है, तो फिर हैकर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ओके। वेयर सर्वर कोर आई यूज्ड सॉरी इज यूज्ड एज पर इंडस्ट्री लेवल, सो एआई ने आंसर क्या किया है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड ऑटोमेशन और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेटा सेंटर भी है, स्टैंडर्ड भी है, और अदर वर्जन भी है। तो सिंपल यही फीचर है कि हमारा कोई भी एडिशन हम लेते हैं उसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और कोर सर्वर फास्टर बूट प्रोवाइड करता है, और डोमेन कंट्रोलर, फाइल सर्विसेज, सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि ऑप्टिमाइजिंग फॉर वर्चुअलाइजेशन मीन्स अगर हम मान लिया कि कोई ऐसा कंटेनर टाइप का सर्विस रन करना है कि हमें एक सर्वर में मल्टीपल और मशीनें बनानी है, मल्टीपल और सर्वर रन करने हैं, तो एक हाइपर वी फीचर इनेबल करेंगे अपने कोर के अंदर, और उसमें और मल्टीपल मशीनें बना देंगे। तो हमारा जो मेन सर्वर है वो कम से कम रिसोर्सेज के साथ चल रहा होगा, है ना। और और जो टर्मिनल या कोर सर्वर होते हैं, कम फीचर सर्विसेज इनेबल होने की वजह से उसके डैमेज या डेड होने का चांस भी बहुत कम होता है,
Okay, in compare of GUI server, your core server is more reliable and secure and comes with long life, right? समझ रहे हैं आप लोग? ओके, तो कोर सर्वर को मैनेज करने के लिए पावर शेल चाहिए। मीन्स पावर शेल कोर सर्वर के अंदर होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देखा है, दिस इज the simple command line option. But if you want to, sorry, this is the PowerShell, but I think you can deploy power, you can access PowerShell console from another way. Okay, I'll tell that how to set up. For example, if you want to exit from this PowerShell, you can press 15 and enter. This is the PS mode. Here you can deploy more option. Okay, if you want to go to the basic fundamental setting again, so you can type sconfig. Here you can type sconfig and you will access again the fundamental services in your core server, right? तो पावर शेल का इस्तेमाल हम बहुत सारे सर्विसेज और सेशंस को मैनेज करने के लिए करते हैं। विंडोज़ एडमिन सेंटर, रिमोट टूल वगैरह, और टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम रिसोर्सेस में ये ऑपरेट हो जाता है। ओके, एक विंडोज सर्वर 2016 का एक ऑप्शन आया था, 2016 विंडोज सर्वर, जिसमें नैनो सर्वर का एक अपडेट आया था, आप लोगों ने सुना था, नैनो सर्वर बनाया जाता था। अब कोर सर्वर है। तो विंडोज सर्वर 19 और 2022 या फिर 2025, इन सब चीज़ों के साथ कोर सर्वर हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, और नैनो सर्वर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था मैनेज करना और ये सारी चीज़ें, बट नाउ वी हैव कोर सर्वर। ओके, एंड दैट्स ऑल। नाउ यू कैन सेटअप एसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोर सर्वर, कि भाई अब हम कोर सर्वर को मैनेज कैसे करेंगे। ओके, तो आप में से कितने लोग कोर सर्वर पर कोई काम किए हैं, जैसे कोई भी सर्विस मैनेज करना, एनी टास्क? चलिए, कोई बात नहीं अगर नहीं किया है तो। आप लोग, ठीक है। तो अगर मान लिया कि मैं फर्स्ट सेटिंग यहाँ पर जो है, डोमेन एंड वर्क ग्रुप, अगर मैं वर्क ग्रुप डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मतलब अभी करंटली हमारा कंप्यूटर क्या वर्क ग्रुप है। वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एज अ क्लाइंट मशीन वर्क कर रहा है, एज अ इंडिविजुअल independent user is work group computer. Okay, and while using any particular VMware option, you can use snapshot to recover your server in case of any failure after any configuration. Okay, so snapshot will create a restore point. Okay, in case of uh, failure or crash, you can recover your machine with the help of restore point. So this is the first option, means I can join domain. ओके, अगर हमारी कंपनी में कोई डोमेन रन हो रहा है, जैसे सीखोलाइव.com या कुछ भी ऐसा, तो हम उस मशीन को ज्वाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। एंड द सेकेंड ऑप्शन मीन्स, सेकेंड ऑप्शन यू कैन सी देर इज, और दिस इज लाइक computer name. So this is current computer name, and it is highly recommended to change your computer name.
क्योंकि इसका कंप्यूटर नेम, ये सर्वर का नेम है, तो ये रिकग्नाइज कर पाना नेटवर्क के अंदर बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर मल्टीपल्स मशीनें हों। बट अगर मैं इसका नेम दे दूं, दिस इज़ लाइक कोर सर्वर 1 डैश हेड ऑफिस, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये हेड ऑफिस का हमारा पहला कोर सर्वर है। ओके, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, मतलब इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो सर्वर का कभी भी किसी भी कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट नेम नहीं होता है। और अगर आप ये छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्सपीरियंसेस मैनेज करने का इन्वायरमेंट का नहीं है। तो कंप्यूटर नेम इज़ एन एसेंशियल पार्ट, ओके, आफ्टर setup of any machine like client and server, we need to change it. Add local administrator. You can add local administrator. You can manage multiple user. You can manage remote management, means remote services. And this is update setting. So the by default setting is download only. And let me show, for example, if you want to change any setting, so how it is possible. So for example, this is the वर्क ग्रुप एंड डोमेन, फॉर एग्जांपल वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 1 एंड एंटर, it will ask further option like do you want to join domain. So if you want to join domain, click D, means press, yeah, type D and press enter. And for work group, press W. For example, I want to join domain, D and enter. So enter the domain name. भाई डोमेन नेम हमारा सीखो लाइव डॉट कॉम है, नेम देंगे, एक्सेस करेंगे सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली कर पाएंगे ज्वाइन। ओके, बहुत आसान है आगे का सेटअप कोई भी ऑप्शन यूज़ करने के बाद। लेट मी शो दैट हाउ टू चेंज द कंप्यूटर नेम with the help of this option. So this is the second option, and for example I want to change the computer name like S22 core dash 1 dash HO, enter, press Y, it will reboot and save your setting. अच्छा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कसम खा लिया सबने, बोलूंगा नहीं। यस सर। हाँ, बताते रहिए ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पूछिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है। सर ये किस नंबर की आ रहा है। क्लास है ये, इस मतलब कोर्स की? ये हमारा आज क्लास सर्वर का डे 1 है, ठीक है। अ- अच्छा, और इससे पहले कोई क्लास अभी नहीं हुई इससे है? पहले नहीं, नेटवर्किंग की 2-4 क्लासेस हैं, तो नेटवर्किंग का वीडियो आपको शेयर किया गया, देख लेंगे। वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, ओके। नेटवर्किंग अच्छा। में पढ़ा देता हूँ हर बैच में, कि अच्छा। आपको बेसिक आइडिया हो जाए किसी को भी कि कैसे क्या करना है। नेटवर्किंग इज़ नॉट दिस सिलेबस पार्ट, ओके। ओके सर, नेटवर्किंग तो वो सर्वर में पढ़ाने का पीछे मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब मैं इसलिए ऐड करता हूँ कि आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगी, लैन मैन कैन वैन ये सब होता क्या है, ठीक है। वो तो पता है सर, लेकिन पीछे के क्लासेस मिल जाएंगे क्या जो हुई होगी? वीडियोस एक्सेस आपको मिला होगा, हाँ, वीडियो वेबसाइट का एसेस तो एक्सेस है। में, तो उसमें मॉड्यूल हाँ। 1 देखिए ना, ऐड है। हाँ। अच्छा, वही लाइव क्लास में भी पढ़ाएगा? हाँ हाँ, वही लाइव क्लास का है। अच्छा। मॉड्यूल 1 बेसिक नेटवर्किंग का है, वो देख लीजिए। सर्वर स्टूडेंट को बेसिक नेटवर्किंग एटलीस्ट आनी चाहिए, है ना। जी सर। और आप आज देख रहे हो कि हम लोग सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इससे बेसिक्स क्या होगा, और सर्वर का जी कोर पार्ट मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ से सर्वर शुरुआत किया जा सकता है, आप खुद आइडिया लगाओ। आई थिंक यही शुरुआत है ना, कि हम सर्वर को इंस्टॉल किए, अब धीरे धीरे उसको मैनेज करना सीख रहे हैं ना, डाउनलोड किए, जी सर। राइट। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्या दे देता हूँ वो सिलेबस का पार्ट नहीं है।
ओके। मैं यहाँ पढ़ाते पढ़ाते आपको एज्योर का एक्सेस करा दूँ, मैं हाइपर वी के वी सेंटर का एक्सेस करके कुछ चीज़ें समझा दूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको भी वो करिए। मतलब जैसे नहीं होता है कि ट्रेनिंग के ड्यूरेशन कुछ चीज़ें समझाने के लिए बहुत कुछ एक ट्रेनर को करना पड़ता है। मैं सिर्फ पॉइंट अगर सर्वर का कवर करूँ तो फिर 40 घंटे के सिलेबस में ख़त्म हो जाएगा। मुझे 60 70 80 घंटे का कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं? ठीक। तो बट थोड़ा सा, जैसे मैं अगर इतना एक्साइटेड इंटरेस्टेड और एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि जित नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं लिमिट रखें कि सर्वर में बस मुझे एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस डीएचसीपी पढ़ के जॉब लेनी, नहीं। जॉब तो 4 रोल पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, वो मिल जाएगी आपको। बट अगर हमें मार्केट को कंपटीशन देना है या और लोगों को, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वहाँ हम भी जा रहे हैं ना। ओके ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। देखो अभी हमारा सर्वर का नेम क्या हो गया, सर्वर कोर 1 HO। इतना तो समझ में आया। जी सर। ओके। अगर मान लिया, और इसमें बेसिक सेटिंग आप देख लेना, अगर मान लिया कि मुझे इसके अंदर चेंज करना है लाइक नेटवर्क सेटिंग, तो मैं यहीं से प्रेस करूँगा 8 एंटर। और यहाँ से आप देखेंगे दिस इज आईपी एड्रेस, 1 प्रेस करेंगे। आईपी अगर चेंज करना है, नहीं तो अगर डिफ़ॉल्ट वाली आईपी जो मिली है वही रहने दो, एंटर करो। और यहाँ से आपको अगर आईपी चेंज करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फर्स्ट, एंटर। स्टैटिक आईपी चाहिए या डीएससीपी, डीएससीपी के लिए डी प्रेस करो, स्टैटिक के लिए एस प्रेस करो, एस, एंटर। अब जो आईपी आपको देनी है कर दो। आसान है ना मैनेज करना। अब मुझे बताओ, कोर सर्वर का ये जितना 10 5 सेटिंग है वो मैनेज करना डिफिकल्ट है क्या किसी के लिए? नो सर। हाँ, इतना स्मार्ट बनेंगे कि हाँ, कम पढ़ाओ ज़्यादा समझो। तो ये हमारा कोर सर्वर का फीचर है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट रहा। अगर इसको एडवांस में समझना है, पावर शेल कैसे यूज़ करना है, तो अगर सभी लोग रेडी हो तो मैं एक्स्ट्रा उस पर सेशन थोड़ा दे सकता हूँ कि कैसे आप कोर सर्वर को पावर शेल के साथ यूज़ करना स्टार्ट करोगे। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ सर। है यस ना? सर, आई थिंक श्योर सर। सभी लोग होंगे। हाँ यस सर। हाँ हाँ right। क्योंकि जीयूआई तो हमें पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, जीयूआई तो हमारा सिलेबस है। कोर सर्वर में क्या है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं, बट आपको इजी कर दूंगा। मतलब इस अभी जो आधे घंटे का भी सेशन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार यार इतना आसान है। मैं बताता हूँ कैसे, कितना आसान है। एग्जिट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कोर सर्वर में, कभी कभी ऐसा भी इंटरफेस मिलेगा कि आप एग्जिट हो और बिल्कुल इस पोजीशन पर हो, और यहाँ से एस कॉन्फ़िग लोड करके 15 मीन्स, या हो सकता हो कि आप बिल्कुल बाहर हो। तो बहुत सारा ऐसा कंपनी के अंदर सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो सर्वर है वो पावर सेल मोड में ना हो। तो आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट पावर शेल, एंटर। क्लियर है? आ गया पावर सेल का एग्जैक्ट इंटरफेस, है ना? यस सर। तो यस ये सर। हमारा पावर शेल होता है। एंड अगर आपको ये जानना है कि व्हाट इज द पावर शेल, तो पावर शेल is a powerful cross-platform command line shell for scripting languages and automation framework deployed by Microsoft. Okay, means it is an advanced command line interface. With the help of this parcel, you can use automation, scripting, and other different configuration. Means even you can access like Linux server with the help of PowerShell. ओके। पावर सेल एक क्या बहुत एडवांस प्रोग्राम है। पावर शेल का पूरा बुक आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। यहाँ से देखो है, सॉरी, यहाँ से, एंड दिस इज द पीडीएफ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
तो यहाँ से सिंपल आपको पावर शेल क्या है, पावर शेल काम कैसे, इससे बढ़िया बुक्स कहाँ मिलेगी आपको, कैसे क्या करना है, सब कुछ यहाँ से देखते हुए आप नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ। यहाँ से व्हाट इज़ कमांड शेल, व्हाट इज़ पावर शेल कमांड, डिस्कवर पावर शेल, इंस्टॉल पावर शेल, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट की साइट से चेक कर सकते हो, राइट। सो अभी मैंने देखा कि अभी हमारे कंप्यूटर का नेम क्या है। करंट में हमारा जो कंप्यूटर है उसका नेम क्या है, तो सिस्टम इन्फो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ कमांड्स अगर नोट करना हो कर लो, ये मैं नोट करके शेयर नहीं कर पाऊँगा। एक्स्ट्रा सेशंस जो हैं वो थोड़ा सा आप लोग या रिकॉर्डेड वीडियोस में डाल दिया जाएगा, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ नोट कर लेंगे। नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो प्रीफर करो, क्योंकि कमांड नोट नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्या क्या लिखेंगे, ज़रा सा मिस्टेक होगा तो दिक्कत होगी। तो वीडियो से बाद में आप इसको चेक कर लेना। तो होस्ट नेम मतलब कि हमारे कंप्यूटर का नेम क्या है, ये है, ओके। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ये हमें देखने को मिला। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीनेम। अब देखो पावर शेल कितना आसान है यूज़ करना, मैंने लिखा री एन ए एम, मुझे नहीं पूरी कमांड पता, तो टैब प्रेस करेंगे। देखो टैब प्रेस जैसे जैसे करता जाऊंगा सारी कमांड इस पर्टिकुलर वर्ड से आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ये हेल्प के लिए है, क्लियर है सबको, तरीका समझ लो बाकी सब आसान हो जाएगा। तो रीनेम लिखा, अब रीनेम किसको करना है आप बताओ, कंप्यूटर को, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कॉम्प समथिंग तो आएगा, हेलो हेलो। अगर, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था। अ, हाँ ये हाँ, अपन CLI मोड यूज कर रहे हैं तो फिर पावर सेल का क्या क्यों यूज करना, मतलब क्यों रिक्वायर्ड है ये? मैं भी कर पावर सकते हैं ना? कौन सा सी एल आई, हाँ CLI। हाँ बट सी एल आई में कमांड्स नहीं चलेंगी ये सब, जो पावर शेल की सारी चीज़ें, पावर शेल सब चला देगा बट कमांड लाइन जस्ट बेसिक कमांड चला पाएगा, है ना। आप उसके थ्रू अगर एडी नहीं डिप्लॉय पूरा कर सकते। हाँ, तभी मैनेज करना है उसके लिए पावर सेल की पावर मतलब शेल रिक्वायरमेंट चाहिए। है ऐसे। हम्म। और बेसिक जैसे डेट और टाइम चेक करना है, आईपी क्या है वो चेक करना है ना, यूज़र नेम बनाना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो कमांड लाइन से चल जाएगा। डायरेक्टरी बनानी डिलीट करनी है, बट ऑटोमेशन करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है पावर शेल के थ्रू, जो हमारे विंडोज़ सर्वर के रोल एंड फीचर्स हैं, 20+ रोल एंड 50+ फीचर्स हैं, उसको मैनेज करना है तो पावर शेल चाहिए, है ना। बट सर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसमें कैसे मालूम पड़ेगा? GUI हो तो उसमें तो मालूम वो तो बाद की पड़ेगा। बात है, अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हमें इवेंट्स मिलते हैं ना, हमारा लॉग सर्वर हमें रिप्लाई करता है ना, कि क्या दिक्कत है या कौन सी सर्विस फेल हो गई है। मान लिया कि अगर हमारे कोर सर्वर पर वेब सर्वर चल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए आईआईएस आपने डिप्लॉय किया है, ठीक है, क्लियर है। ओके। अगर मान लिया थैंक यू। मैंने आईआईएस डिप्लॉय किया है तो आईआईएस डिप्लॉय करने में क्या दिक्कत है कि हमारा वेबसाइट एक्सेस हो रहा है, और अगर क्लाइंट को म्यूट कर लीजिए, आई थिंक डिवाइस वो हो रहा है, इको हो रहा है। अगर हमारा आईआईएस यूज़ करने में क्लाइंट को इशू हो रहा है ना, तो हम सिंपल क्लाइंट को इशू का मतलब क्लाइंट वेबसाइट से लॉगिन कर रहा है, उसका लॉगिन फेल हो जा रहा है, या क्लाइंट वेबसाइट से कोई डेटा डाउनलोड कर रहा है, डेटा अनअवेलेबल दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो मतलब हमारे वेब सर्वर में कोई दिक्कत है। तो फिर एज अ एडमिन हमें आकर अपने वेब सर्वर को और डेटा को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ का लोकेशन है, वहाँ पर वो डेटा है कि नहीं है, जो भी दिक्कत आ रही है। या इवेंट्स हमें पता चलेगा, इवेंट्स हम यहाँ पर निकालेंगे, या लॉग सर्वर में हम बनाएंगे। कंपनी के अंदर लॉग सर्वर होते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से पता चलता है कि हमारे सर्वर में प्रॉब्लम कहाँ पे, कौन से सेंसर्स डाउन हो रहे हैं, है ना। अभी समझ में आया, इसी की बात आप कर रहे हो कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे या क्या यस दिक्कत है। सर। हाँ, तो जैसे एक्स सर्विस अगर हमने चलाया है, रन किया है और उसमें कोई दिक्कत है तो हमें पता चल जाएगा, क्लाइंट यूज़ नहीं कर पा रहा है कि नहीं। कस्टमर खुद फीडबैक देगा कि भाई मैं फाइल सर्वर नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, फाइल सर्वर अनअवेलेबल दिखा रहा है।
तो हो सकता है फाइल सर्वर की सर्विस डाउन हो गई हो, तो हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई अपडेट आपने किया हो फाइल सर्वर, उसकी वजह से शट डाउन हो गया हो, तो फिर हम दोबारा उसको सिस्टम की सर्विसेज को चेक करेंगे कि वो ऑन है या नहीं है। ओके। अगर लगता है कि हमारी सर्विस ऑन है फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आईपी की प्रॉब्लम हो। मतलब ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटी हमें आ जाती है जब हम धीरे धीरे मैनेज करना स्टार्ट करते हो तो। ओके, चलें आगे। यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया रीनेम स्पेस कंप्यूटर नेम। मैं बता रहा था कि आप कैसे एक कमांड से आप, एक कमांड मैं बता रहा हूँ तो आप अगली 50 कमांड का आइडिया लगा लो कि अगर मुझे कुछ भी मैनेज करना है, अगर मान लिया मुझे कुछ सर्विस के बारे में पता करना है ना, जैसे मेरे सिस्टम पर कोई सर्विस रन है, उसके बारे में पता करना है, तो हम लिखेंगे गेट। गेट मतलब पाना, और अगर हम यहाँ पर सेट लिखते हैं मतलब सेट करना। ओके, तो गेट हाइफन, अब क्या मान लिया कि मैंने अपने सर्वर पर डी डुप्लीकेशन इनेबल किया है, तो डी डुप प्रॉपर्टीज, मतलब एग्जैक्टली अगर हम मान लिया गेट हाइफन डीएनएस, डीएनएस के बारे में पता चलेगा। समझ में आया कैसे पावर शेल में हम हेल्प लेंगे? अगर कोर सर्वर में पावर शेल है तो अगली कमांड्स के बारे में। ठीक है, रीनेम हाइफन कंप्यूटर स्पेस एंड हाइफन न्यू नेम स्पेस। अब कंप्यूटर का नेम जो भी आप देना चाहो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू असाइन सर्वर 01 एंड रीस्टार्ट। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये, बस इतना करके एंटर करना है। हो गया अप्लाई। आप देखोगे तो आपका सर्वर का नेम यहाँ पर चेंज हो गया होगा, सर्वर 01 दिखाएगा। ये देखो, ठीक है, सर्वर 01। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ एंड सॉरी 15 प्रेस करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, स्टार्ट पावर शेल। क्या स्टार्ट सीएमडी से सीएमडी स्टार्ट हो जाएगा? ये देखो सीएमडी है और बैकग्राउंड में हमारा पावर शेल है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीनेम हाइफन, देखना वही सेम कमांड में एग्जीक्यूट करता हूँ, रीनेम कैप्स में रीनेम बिल्कुल ऊपर जैसा, रीनेम हाइफन कंप्यूटर स्पेस न्यू नेम स्पेस सर्वर 2 स्पेस हाइफन रीस्टार्ट, एंटर। कमांड एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर है गोकुल, निखिल एंड अदर? तो आपका क्या है कि कमांड लाइन जस्ट बेसिक कमांड के लिए, ये तो विंडोज़ 7 8 10 तक एक्सपी में हम लोगों ने देखा था कमांड लाइन इंटरफेस, और ये टूल अवेलेबल होता है ताकि हम कमांड से छोटी छोटी सर्विसेज के बारे में पता कर पाएँ, बट इसके थ्रू हम मैनेज कर लें ये पॉसिबल नहीं है सब कुछ। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने सर्वर पर आईपी चेंज करनी हो, करंट आईपी क्या है? अब मुझे आप लोग बताओ, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, मैंने नेटवर्किंग का फंडामेंटल क्यों पढ़ाया था, और अगर मान लें मुझे अपने विंडोज़ मशीन पर आईपी पता करनी हो क्या है, तो क्या कमांड होगी? आईपी कॉन्फ़िग या कुछ और? यस सर, आईपी कॉन्फ़िग। बट अगर मैं पावर शेल पर आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ, हमें मिल गया हमारा आईपी 11.161 है, और अब मैं इफ़ कॉन्फ़िग लिखता हूँ तो नहीं कमांड कर रहा है, एलएस में लिखता हूँ काम कर रहा है, मीन्स मल्टीपल लिनक्स का भी टर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं अपने सिस्टम पर आईपी चेंज करता हूँ। करंट आईपी हमारा 11.167 है। करंट आईपी इज़ 192.11.167. I want to change it like 10.0.0.10. Subnet mask 255.0.0.0 and gateway 10.0.0.1 and DNS 10.0.0.0.10. This is DNS, this is gateway, this is mask, and this is IP. I want to assign these all details on this machine, okay? तो भाई अगर हमने पहले डिफाइन कर लिया कि हमारा ये सब ऑप्शन मुझे सेट करना है, तो कैसे करेंगे? न्यू हाइफन नेट आईपी एड्रेस स्पेस, मुझे इंटरफेस सेलेक्ट करना है। तो भाई अब इंटरफेस मुझे पहले देखना पड़ेगा। स्टार्ट cmd sconfig 8। इंटरफेस का नेम क्या है? इंटेल जीबी दिस इंडेक्स 1 पर अगर हम आते हैं, सॉरी 1 एंटर, तो इंटरफेस हमारा है ईथरनेट। ओके, 8। यहाँ पर देखो ईथरनेट 0, आईपी कॉन्फ़िग से हमें पता चला ईथरनेट 0। ये तो हम यहाँ से भी देख सकते थे आईपी कॉन्फ़िग, तो हमारा दिखाता ईथरनेट 0। ठीक है, यहीं से देख लिया। तो हम अब स्टार्ट करते हैं नेट हाइफन, सॉरी न्यू हाइफन नेट आईपी एड्रेस स्पेस हाइफन, हाइफन मीन्स डैश, इंटरफेस एलियास, और मेरा यहाँ पर इंटरफेस नेम होगा विच इज़ ईथरनेट 0 स्पेस। ईथरनेट 0 पर मैं देना चाहता हूँ लाइक आईपी एड्रेस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर पूरा विजिबल हो। आईपी एड्रेस स्पेस, अब मुझे क्या आईपी देना है? 10.0.0.10 था स्पेस। मुझे प्रीफिक्स लेंथ देना था, तो डैश प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ हमारा कितना था? 8 बिट का, मतलब 8 बिट का नेटवर्क है ना, 255.0.0.0 8 बिट का। आईपी वाला चैप्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो यह सबनेट मास्क हमारा 255 ए क्लास का क्या होता है? 255.0.0.0 समथिंग उसका, और फिर डैश लगाएंगे स्पेस देकर डैश। फिर क्या बचता है हमारा? डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1। इतना देने के बाद मैंने एंटर किया और ये आईपी हमारा सेट हो गया। तो क्या क्या इस तरीके का अगर हमें चेंजेस करना हो पावर शेल के थ्रू तो बहुत टफ है क्या? पावर शेल बहुत टफ नहीं है, है ना? बस हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए। क्यों? यस सर। अब मान लिया कि ये मैंने सेटअप कर दिया, देखो सारा सेटअप हो गया एज पर गिवन डिटेल। बट अगर मुझे डीएनएस सेटअप करना हो, भाई डीएनएस भी तो बदल दो इसका। तो सेट हाइफन डीएनएस क्लाइंट सर्वर एड्रेस स्पेस हाइफन इंटरफेस एलियास स्पेस ईथरनेट 0, इसी पर अप्लाई करना है। ऊपर नेम आप देख लिया करो, ईथरनेट एलियास क्या है? ईथरनेट 0। और
मान लिया कि मेरा जो सॉरी हाइफन सर्वर एड्रेस 8.8.8.8 8.8.8.8 ओके। ये हमारा, क्योंकि दो एड्रेस ऐड करते हैं ना, एक प्राइमरी डीएनएस और एक अल्टरनेट डीएनएस, तो ये हमारा प्राइमरी डीएनएस हो गया। कॉमा लगाते हैं यहाँ पर। अल्टरनेट डीएनएस के लिए भी हम इन्वर्टेड कामा, या नहीं, इसको इन्वर्टेड कामा नहीं, या डायरेक्ट लिखते हैं ना, एड्रेस 8.8.8.8 कॉमा 8.8.4.4 एंटर, बस। अब आप चेक करेंगे आपका नीचे कोई भी एरर नहीं आने का मतलब क्या है कि हमारी कमांड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो रहा है। समझ में आया सबको? अब मुझे ये बताओ कि कमांड लाइन इंटरफेस आप सब लोगों ने विंडोज़ एक्सपी विस्टा 7 10 तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्यों? पढ़ा है या नहीं? कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा? पढ़ा है, लेकिन बहुत बेसिक ही यूज होता है, क्योंकि जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे डिफरेंट रिसोर्सेज से हम लोग कमांड यूज करते रहते हैं। कोई हाँ स्ट्रक्चर्ड हाँ स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल। वे में नहीं पढ़ा है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा है, तो 1.5 घंटे का ये आई थिंक कोर्स है, 1.5 लाख लोग देख चुके हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें उन लोगों को मिल रहा होगा। तो मैं चैट बॉक्स में विंडोज़ क्लाइंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी, तो इससे हेल्प ले लेंगे, अदरवाइज़ इग्नोर करेंगे। विंडोज़ अगर आप ऑपरेट कर पाते हो ना, जैसे आपके पास जो लैपटॉप है विंडोज़ 10 11 7 जो भी उसमें है, अगर आप यूज़ कर पाते हो कि भाई उसके अंदर आईपी कहाँ से चेक करनी है, इंटरनेट चलाते कैसे हैं, ब्राउज़र कैसे ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो मत पढ़ना, ठीक है? मतलब आपको आता है फिर। और सीएमडी पर बेसिक कमांड, तो मैं सीएमडी का ही ऑप्शन था इसलिए पूछ लिया कि अगर मुझे चेक करना हो कि हमारे सिस्टम पे हार्ड डिस्क जो लगी उसका डिटेल क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे अगर पढ़ा हुआ है विंडोज़ 10 या 11? तो ये सब थोड़ा टूल पता होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं आप लोग, बताइए। मुझे अपने हार्ड डिस्क का डिटेल लेना है तो नहीं पता, गेट हाइफन डिस्क। अरे डिस्कनेक्ट कनेक्ट कौन हो रहा है बार बार? गेट हाइफन डिस्क। गेट हाइफन डिस्क से हम ये देख पाते हैं कि हमारे सिस्टम पर एक हार्ड डिस्क लगी है 0, और इस हार्ड डिस्क का जो साइज है वो है 30 GB का। यही तो मैंने इंस्टॉल किया था, है कि नहीं? 30 GB का हार्ड डिस्क। तो मैं अगर मान लिया कि हमारे सिस्टम पर एक और हार्ड डिस्क लगा देता हूँ, वर्चुअल मशीन में थोड़ा आसान है हार्ड डिस्क ऐड करना। अगर हमारा रियल मशीन होता, जैसे आप में से किसी ने रियल हार्ड डिस्क वाला सिस्टम, मतलब रियल मशीन पर अपना कोर इंस्टॉल किया है या जीयूआई इंस्टॉल किया है, तो उसको हार्ड डिस्क फिर खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आप हार्ड डिस्क ऐड कहाँ से करोगे? इसीलिए जो एजुकेटर, ट्रेनर, स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल की जो पर्सनल लैब होती है वो वर्चुअल मशीन में होती है, कि हम मल्टीपल एनआईसी कार्ड, मल्टीपल हार्ड डिस्क, मल्टीपल मशीनें रन कर पाए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप समझ में आया वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं? जी सर। तो इसमें क्या है कि अगर वर्चुअल मशीन पे हम हाइपर वी या वर्चुअल बॉक्स या वी एम वेयर के अंदर हैं, तो कितना आसान है कि हमने यहाँ से सिंपल ऐड करना है एक नई हार्ड डिस्क, 2 4 10 GB की जो चाहिए, आप यहाँ से हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके और बस यहाँ से नेक्स्ट करो। मैं 5 GB का एक हार्ड डिस्क ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, हो गया हार्ड डिस्क ऐड, बस। अब अगर मैं यही कोर सर्वर अपने मेन कंप्यूटर पर डाल दूँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक हार्ड डिस्क खरीदना पड़ेगा, ओके। और आज जो हार्ड डिस्क 4,000 की थी 1 साल पहले, 6 महीना पहले, वो आज 40,000 की है। तो यहाँ से हम देखें तो 30 GB का एक स्पेस आ रहा है, बट अगर मैं गेट डिस्क अब दोबारा करूँ तो एक और डिस्क आ गया 1,
जो 5 GB का अभी जो मैंने ऐड किया है ना? आसान है डिस्क की डिटेल निकालना। अब ये डिस्क ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? मतलब ये सर डिस्क यूज में नहीं है ना? ऑफलाइन का मतलब सिंपल। Yes, sir. मैं अगर इसको इनिशियलाइज कर दूं तो सबसे पहले मुझे पावर शेल के अंदर ही इनिशियलाइज डिस्क, नंबर हमारा डिस्क का कौन सा है, सॉरी डैश, नंबर 1 है तो 1 को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे न्यू पार्टीशन बनाना है पहले। इनिशियलाइज मतलब वो ऑनलाइन हो गया, ठीक है? आप डिस्क स्टेटस निकालेंगे तो दिखा देगा। तो मुझे न्यू पार्टीशन किस में बनाना है? डिस्क नंबर नॉट आईडी, डिस्क नंबर। तो डिस्क नंबर 1 में पार्टीशन बनाना है और मुझे सेलेक्ट करना है यूज़ मैक्सिमम साइज़। तो मैक्सिमम साइज़ कितना? जितने साइज़ का मतलब मैक्सिमम, अगर आप मिनिमम कोई साइज़ लेना चाहते हो कि भाई मेरा 5 GB उसमें 3 GB बस लेना है तो साइज़ सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने मैक्सिमम जितने GB का उतना पूरा दे दो और असाइन ड्राइव लेटर 4.98 GB का पार्टीशन यहाँ पर ई पार्टीशन बना ड्राइव लेटर के साथ, ठीक है? अब इसको यूज़ हम नहीं कर पाएंगे जब तक इसको हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि हमें डिस्क, जब नई डिस्क ऐड करते हैं तो फॉर्मेट करते हैं फिर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट डैश वॉल्यूम, ड्राइव लेटर आपको दे देना है। ड्राइव लेटर क्या है हमारा? ई है ना? ऊपर देखो ई बना है, ई। और कौन सा फाइल सिस्टम देना है? तो फाइल सिस्टम कौन सा होता है विंडोज़ में? एन टी एफ एस। इससे बेटर क्या है? आर ई एफ एस भी है, एन टी एफ एस। और न्यू फाइल सिस्टम, नहीं, डैश न्यू फाइल सिस्टम लेबल। लेबल मतलब क्या? न्यू फाइल सिस्टम लेबल मतलब क्या होता है? लेबल मतलब ड्राइव क्या? का नेम। ड्राइव का नेम। तो नेम हम क्या दे दें इसको? मान लिया ऐप नाम से ऐप डेटा, एंटर। देखो फॉर्मेट हो गया, ओके हो गया, सब कुछ रेडी। तो ये हमारा सिंपल 4.98 GB का ऐप डेटा नाम से एक पार्टीशन बन गया। अगर GUI सर्वर होता तो हम लोग देख भी पाते हैं ना? समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ हाँ, यस यस। तो बस यही सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज़ करने के लिए। और अगर ADDS वगैरह इंस्टॉल करना है, मैनेज करना है तो तरीका है, वो भी हमें इंस्टॉल तो नहीं करना है, बट मैं आपको एडवांस रोल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। दिस इज़ द लास्ट लैब। इंस्टॉल स्पेस हाइफन। अब देखो ये विंडोज़ फीचर है तो विंडोज़ फीचर में एडी डैश एडी डैश DOM डोमेन डैश सर्विस। इंस्टेड ऑफ सर्विस यू कैन टाइप सर्विसेज स्पेस हाइफन इंक्लूड सब फीचर, नहीं, इंक्लूड मैनेजमेंट होना चाहिए, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल एंड एंटर। प्रोसेस होता जाएगा, हमें प्रोसेस स्टार्ट करने का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ऊपर हो रहा है प्रोसेस, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन हो रहा है। वैसे हम ये सब काम को GUI सर्वर पर करेंगे। तो रेस्ट इसी तरीके से हमारा देखो एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल हुआ।
import ADDS डिप्लॉयमेंट। अब बस अपने ADDS सर्वर का पूरा डिटेल लिख लो, लाइक इंस्टॉल न्यू फॉरेस्ट एंड प्रमोट टू अ डोमेन कंट्रोल, तो इसके लिए हम डाल देंगे इंस्टॉल -ADDS फॉरेस्ट। उसके बाद नई लाइन में डोमेन नेट बायोस नेम, इंस्टॉल DNS, और बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो सेटअप हो जाता है। तो ये जस्ट जो मैंने पावर शेल का एक बुक आपको रिकमेंड किया माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर, आप उससे थोड़ा सा देखेंगे। और पावर शेल के बारे में अभी ज़्यादा समय मत देना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो पावर शेल थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। रेस्ट आपका सिलेबस ही इतना कुछ है कि 4 से 6 महीना लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, जितना पढ़ाया जाएगा, है ना। अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो, देखते हो जितना पढ़ाया जाएगा, तो कम से कम 4 to 6 मंथ लगेगा आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने में। फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो समय देंगे और सारी चीज़ें सीखेंगे। होप कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेंगे।